Now we will start the next lesson, lesson number 15, natural phenomena. ठीक है, नेचुरल फिनोमेना मीन्स जो ऐसे फिनोमेना, ऐसे प्रोसेस, ऐसे एक्ट जो नेचुरली होते हैं. ओके, सो कैन यू फिल इन द बॉक्सेस यूजिंग द राइट वर्ड. ये जो पिक्चर्स दिए हुए हैं, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दीज पिक्चर्स एंड फिल अ सुटेबल वर्ड्स. सुनामी, अर्थक्वेक, थंडरस्टॉर्म, flood, tornado and volcanic eruption. See this picture. So a suitable word for this picture is thunderstorm. Okay, and this is volcanic eruption. That one is tsunami. This is earthquake. Okay, and this one this is flood, and last one is tornado. Okay, this is tornado. So all these the phenomena are natural phenomena. Okay, now how the charges are, what are electric charges, we will discuss. So electric charges, all matter is made up of tiny particles called atoms. Previously you studied in the chapter metals and non-metals, it is already covered. In previous classes you also heard this word, atoms. Okay, so all the metals is made up of tiny particles called atom, and an atom is electrically neutral. So how any substance or any particle becomes neutral? Because it has positively charged and same amount of positively charged particles and negatively charged particles. So these opposite charges cancel the effect of each other. Clear? So by this way an atom is neutral. So an atom has a positively charged nucleus with positively charged particles known as protons and nucleons that has no charge, neutrons. Sorry, एक्चुअल में जो एटम है, एटम के अंदर जो पॉजिटिव जो न्यूक्लियस होता है, इट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज. हाउ? एंड ऑल अदर is any other particle are also present? Yes, definitely. In nucleus of atom, as per your standard or your class 8th class के हिसाब से nucleus में protons and neutrons are situated. Okay, so protons having positive charge and neutrons are neutral in charge. They don't have any charge. So by this way the nucleus becomes positively charged. Okay, the nucleus is surrounded by one or more negatively charged particles called electrons. उस nucleus के around चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स रिवॉल्व करते रहते हैं. फिर से एटम का स्ट्रक्चर देखेंगे. सेंटर में न्यूक्लियस है और उसमें प्रोटॉन्स है जो कि पॉजिटिवली चार्ज हैं, एंड अराउंड द न्यूक्लियस one or more than one electrons which carries negative charge revolve all times. Okay, so ultimately positive charges and negative charges जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और इसीलिए every atom has no overall charge. It means it is neutral. Clear? The electricity that is conducted through a circuit consists of moving electrons. Electricity flow करती है. तो ये flow क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में है क्या? दिस इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर. ठीक है, किसी भी एक कंडक्टर. कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस विच अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम देमसेल्व्स. सो दीज आर कंडक्टर्स. सो इलेक्ट्रिसिटी दैट इज कंडक्टेड थ्रू अ सर्किट कंसिस्ट ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स. वो इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीम किसी कंडक्टर के थ्रू जब पास होती है, सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी. उसे ही अपन इलेक्ट्रिसिटी या जनरली अपन उसे करंट कहते हैं. ओके, सो सी द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. ओके, दिस इज न्यूक्लियस. ये पूरा न्यूक्लियस है एंड इट हैज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ओके, टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड दे आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स. इन्हें क्या कहेंगे? इन दोनों को न्यूक्लियॉन्स और सब न्यूक्लियर पार्टिकल्स. क्लियर है? एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. इस न्यूक्लियस के चारों तरफ आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं एंड दे कैरी नेगेटिव चार्ज. प्रोटॉन्स आर
having positive charge and neutrons has no charge. Clear? Next, there are two kinds of charges, namely positive and negatively. हर एक सब्सटेंस यूनिवर्स में न्यूट्रल है. इट मीन जो भी कोई न्यूट्रल है, इट मीन्स दे हैव अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स इन इक्वल अमाउंट, पॉजिटिव और नेगेटिव. इट मीन्स वी विल नो अबाउट द ओनली it means there are positive and negative, two type of charges can exist. दो तरह के चार्ज हो सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. If a body has excess of electrons, it is said to be negatively charged. यदि किसी बॉडी को अपन कह रहे हैं कि वो एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है उसके पास एज कंपेयर टू प्रोटॉन, means unequal number of protons and electrons are present if any body, so it acquires some charge. उसके ऊपर एक चार्ज होगा, वो चार्ज होगी. अब कौन सा चार्ज उस पर होगा, इट्स डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ वेदर इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेस इन नंबर्स और प्रोटॉन्स. इफ इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेस इन एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स, सो इट विल कैरी नेगेटिव चार्ज. इफ प्रोटॉन्स आर in excess as compared to electrons, so body becomes positively charged. ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यदि है, हम प्रोटॉन के टर्म में ना बात करके हम इलेक्ट्रॉन के टर्म में भी बात कर सकते हैं. मीन्स इफ एनी बॉडी हैविंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर देन प्रोटॉन्स, या वो प्रोटॉन रिच है, तो इट विल कैरी नेगेटिव चार्ज. और यदि किसी बॉडी में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मीन्स प्रोटॉन के कंपैरिजन में यदि न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स यदि उसके पास कम है, तो द बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी से पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन की एक्सेस से नेगेटिव चार्ज होती है कोई भी एक बॉडी. क्लियर? टू चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स विल. अब क्या होगा यदि दो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्ज के पार्टिकल्स हैं. ओके, रिपेल ईच अदर इफ दे हैव द सेम टाइप ऑफ चार्ज. They are both positive or both negative. Means same charges repel each other. Though positive body when two negatively charged bodies when come closer, so they will repel each other. Vice versa for positive charge. Okay, so when you bring two positively charged body closer, so they repel each other. Ultimately we can say the same charges repel each other, okay, and attract each other if they have opposite charges. एक पॉजिटिव बॉडी को एक नेगेटिव बॉडी के पास आप लाएंगे तो ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को. मीन्स अपोजिटली चार्ज्ड स्पीशीज और बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर. सिंपल, सेम चार्ज है तो रिपल्शन, और अपोजिट चार्ज होगा तो वो अट्रैक्ट करेंगे. क्लियर है? नेक्स्ट, see in the picture, these both having opposite charge. opposite charge attracts. आप देखिए ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो अपोजिट चार्ज के हैं, तो वह एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. एरो इस तरफ आ रहा है, मतलब अट्रैक्शन शोज कर रहा है. एरो अपोजिट साइड जा रहा है, इसका मतलब ये हमारे पास एक पॉजिटिव है, सपोज ये नेगेटिव है, तो डेफिनेटली अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. बट यहाँ देखिए दोनों सेम चार्ज के लिए कलर से हम एक चार्ज शो कर रहे हैं. बोथ आर नेगेटिवली चार्ज, सो दे रिपेल ईच अदर. सेम फॉर पॉजिटिव चार्ज. ऐसा नहीं कि सिर्फ दो नेगेटिव रिपेल करते हैं, दो पॉजिटिव भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं. ओके, सो अल्टीमेटली वी गॉट अ कंसेप्ट दैट सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर. ओके, एंड नाउ डू वन एक्टिविटी टू टेस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. अब हमें ये देखना है इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है. जो अपन ने अभी ये कंसेप्ट पढ़ा है उसको एक्टिविटी के थ्रू हम समझेंगे. तो आपको क्या मटेरियल चाहिए? अ ड्राई प्लास्टिक कॉम, सम पीसेस ऑफ यूज्ड पेपर. आप छोटे छोटे बिट्स ले लीजिए पेपर के, एंड एक प्लास्टिक की कॉम ले लीजिए, या फिर आप यू कैन टेक स्केल ऑल्सो. ओके, मेथड: रन अ प्लास्टिक कॉम थ्रू योर हेयर सेवरल टाइम्स. बट ये बहुत ज़रूरी है कि आपके हेयर्स ड्राई होना चाहिए, कॉम भी ड्राई होना चाहिए, मतलब ऑयल नहीं होना चाहिए, कोई लुब्रिकेंट नहीं होना चाहिए, तब तो परफेक्ट रबिंग हो पाएगी. ओके, हमें क्या करना है, एक फ्रिक्शन का कंसेप्ट लाना है. ओके, नाउ होल्ड द कॉम नियर सम बिट्स ऑफ पेपर. आपने कॉम और हेयर दोनों को ड्राई रखा, बार बार उसको रब किया, कॉम को हेयर पे या स्केल को हेयर पे. सो उसके बाद अब आप उसे एक
पेपर के जो बिट्स पड़े हुए हैं उनके पास लाएंगे. सो क्लियरली यू कैन सी द अट्रैक्शन ऑफ पेपर्स टूवर्ड्स द कॉम. आपने ये चार्ज कर लिए, चार्ज को आप पेपर के पास ला रहे हो, ये देखिए आप लेके आए, सो ये अट्रैक्ट हो रहे हैं. ओके, सो व्हाट यू हैव ऑब्जर्व, यू विल ऑब्जर्व दैट पीसेस ऑफ पेपर गेट अट्रैक्टेड टू कॉम. उसने अट्रैक्ट कर लिया. क्यों हुआ? आपने बिना रब किए यदि कॉम को लेके आओगे तो कोई अट्रैक्शन नहीं मिलेगा. लेट अस परफॉर्म अनदर सिमिलर एक्टिविटीज टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बेटर. अब एक और एक्टिविटी से हम देखेंगे. टू टेस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यूजिंग 2 रबर बैलून्स. आपको रबर बैलून्स लेने हैं 2. ठीक है, रबर बैलून्स, ये गुब्बारे आप लेंगे. ठीक है, 2 बैलून्स ले आपने. इन्फ्लेट अ बैलून एंड रब इट अगेंस्ट योर हेयर. फिर से आपके हेयर भी ड्राई होना चाहिए और बैलून भी ड्राई होना चाहिए. आपने एक बैलून को इन्फ्लेट किया, उसमें हवा भर ली. ठीक है, नाउ जेंटली ब्रिंग द बैलून क्लोज टू द वॉल. अब आप उस बैलून को वॉल के पास लेके आओगे. ठीक है, रब अ सिमिलर बैलून ऑन योर हेयर. एक और बैलून लीजिए, उसे भी हेयर से रब करिए. नाउ हैंग बोथ द बैलून्स क्लोज टू ईच अदर. नोट योर ऑब्जर्वेशन. अब आप दोनों बैलून को एक दूसरे के पास लाओ. फिर से आप पहले एक बैलून को इन्फ्लेट करिए एंड ब्रिंग इट नियर द बॉल. सो एक तो ये कंसेप्ट है, एक ही एक्सपेरिमेंट है. सेकेंड एक्सपेरिमेंट, जो दूसरा एक और बैलून आपने लिया था उसको भी इन्फ्लेट करिए, उसमें भी हवा भरिए एंड उसको भी आप रब करके अपने हेयर से चार्ज कर दीजिए. ओके, सो ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा? द फर्स्ट बैलून विल स्टिक टू द वॉल. जो पहला बैलून था वो वॉल से स्टिक हो रहा है. The 2 balloons when brought closer to each other will move away from each other. जो सेकेंड बैलून को भी आपने रब करके चार्ज किया था, जब इन दोनों बैलून्स को पास में लाते हो, आप 2 एक्टिविटी कर रहे हो. एक में चार्ज बैलून को वॉल के पास ला रहे हैं और दूसरे में दोनों बैलून्स को पास ला रहे हैं जो कि चार्ज किए थे आपने रबिंग के थ्रू. सो व्हाट यू हैव सीन? You have seen the wall, the balloon which come closer to the wall is stick to the wall. वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, वॉल की तरफ. क्यों? क्योंकि इस बलून से जो चार्ज है, वॉल के अपोजिट चार्ज के पार्टिकल्स उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो इससे ये बलून स्टिक हो जाएगा वॉल पे. ठीक. और सेकेंड केस में जब आपने दूसरा बलून उस पहले वाले बलून के पास लाए थे तो वो रिपेल कर रहा है. क्यों? क्योंकि आपने हेयर से ही दोनों बैलून को रब किया तो दोनों में सेम चार्ज आएगा, बिकॉज दे गो थ्रू द सेम प्रोसेस. दैट्स वाई दे कैरी सेम चार्ज एंड यू नो वेरी वेल सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर. क्लियर? तो यहाँ पर आपको रिपल्शन दिख रहा है, बट यहाँ पर ये अट्रैक्शन हो रहा है, बिकॉज यहाँ आपने रब वॉल को तो रब नहीं किया है ना. तो वॉल में लेकिन ऑलरेडी अभी हमने देखा कि हर एक सब्सटेंस में एटम्स होते हैं, हर एक मटेरियल एटम से बना होता है और एटम में दोनों टाइप के पार्टिकल्स होते हैं. ओके, सो ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स अट्रैक्ट दिस बलून. क्लियर? द कॉमन बलून इन द अबव एक्टिविटीज आर सेड टू बी इलेक्ट्रिकली चार्ज. दोनों एक्टिविटी में आपने देखा बैलून को और फॉर्म को आपने चार्ज किया था व्हेन रब्ड अगेंस्ट द हेयर. आपने जब उसको रब किया था हेयर के अगेंस्ट तो वो चार्ज हो गए थे. क्लियर है? दे फॉर्म इलेक्ट्रिक चार्जेस. उनके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया था. ठीक है. द चार्जेस प्रोड्यूस बाय रबिंग आर स्टैटिक. उस चार्ज को जो रबिंग के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस होता है उसे हम स्टैटिक चार्ज बोलते हैं. ओके, इन अदर वर्ड्स दे डू नॉट मूव. ये चार्ज मूव नहीं करते, ये स्टैटिक हैं, एक जगह रुके हुए हैं, स्टेबल हैं. और हमने करंट या इलेक्ट्रिसिटी में ये देखा था कि वो चार्ज फ्लो हो रहे थे, तो अपोजिट हुआ ना ये इलेक्ट्रिसिटी के. ठीक है, क्योंकि ये एक ही जगह है और चार्ज स्पीशीज हैं और उनमें अट्रैक्शन मिल रहा है या रिपल्शन जो भी मिलेगा उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे. इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल चार्ज और स्टैटिक मीन्स रुका हुआ. ओके, तो रबिंग के थ्रू जब भी कोई आप चार्ज प्रोड्यूस करते हो, सो दिस इज कॉल्ड स्टैटिक चार्ज. इट इज स्टैटिक इन नेचर एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. क्लियर? दीज स्टैटिक चार्जेस प्रोड्यूस a force in object that give them the capacity to attract or repel other objects. ये जो चार्ज है, स्टैटिक चार्ज है, वो उस ऑब्जेक्ट को एक ऐसी कैपेसिटी देता है, उसको एक ऐसा फोर्स प्रोवाइड करता है जिससे वो अट्रैक्ट या रिपेल करने की कैपेसिटी रखता है.
ठीक है, अट्रैक्ट या रिपेल करने की कैपेसिटी रखता है। इस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ओके, and when due to the electrostatic force, if any body attracts other body, so it is called electrostatic attraction force. In case of repulsion, we can say electrostatic repulsion force. Clear? Static electricity is caused by the build-up of electric charges on the surface of object. सिंपल सी बात है, जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है, मतलब वो मूवेबल नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है स्टैटिक चार्ज की वजह से, वो कैसे किसी भी एक ऑब्जेक्ट की सरफेस पर आ रही है। ठीक है, उसके सरफेस पर चार्ज आ जाते हैं, बिल्डअप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, while current electricity refers to the flow of electrons along a conductor. किसी भी एक कंडक्टर से इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होना, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ये डिफरेंस आपको याद हो जाने चाहिए। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की सरफेस पर, किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस पर जो चार्ज बन जाते हैं वो स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है, और जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो थ्रू द कंडक्टर इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, जब दो ऑब्जेक्ट को हम एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं, सो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। सिंपल सी बात है, क्योंकि हर एक सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं। ओके, बट चार्ज जब भी अराइज होता है इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से या गेन होने से, उसमें प्रोटॉन का कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, यदि किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें अराइज हुई, सो इट विल कैरी पॉजिटिव चार्ज। और इफ एनी ऑब्जेक्ट गेन्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट during the rubbing process, so it becomes negatively charged. Okay, so when objects are rubbed against each other, loss or gain of electrons takes place and it results in static electricity. बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है वो रबिंग के थ्रू लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। ठीक है, बट इन केस ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, this is a phenomena of moving electrons in a particular path or direction, such as a stream of them flowing through conducting material. जो इलेक्ट्रॉन्स की एक स्ट्रीम है किसी एक कंडक्टर के थ्रू किसी एक पर्टिकुलर पाथ में या एक डायरेक्शन में मूव करती है, उसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। क्लियर है? नाउ डू दिस एक्टिविटी एट होम। मटेरियल रिक्वायर्ड, पीवीसी रॉड ले लीजिए, वूल लीजिए, ग्लास रॉड लीजिए, सिल्क क्लॉथ लीजिए। आपको दो कॉम्बिनेशंस लेने हैं। आपको पीवीसी रॉड लेना है और एक ग्लास रॉड लेना है, वूलन क्लॉथ लेना है और सिल्क का क्लॉथ लेना है। ठीक है, अब आप करेंगे क्या? रब अ पीवीसी रॉड ऑन अ क्लॉथ ऑफ वूल। वूलन क्लॉथ से पीवीसी रॉड को रब करेंगे। ठीक है, डू दे अट्रैक्ट ईच अदर? क्या ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखिए आपने पीवीसी रॉड लिया और वूल लिया, उसको रब कर रहे हैं, तो चार्ज तो हो रहा है, दोनों चार्ज होंगे, लेकिन ये कैसे चार्ज होंगे? एक से इलेक्ट्रॉन जाएगा दूसरे में, तो जिससे जा रहा है इट विल कैरी पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि बिकॉज इट बिकम्स डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स, एंड जिस पर जा रहा है सो वो इट विल कैरी नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो डेफिनेटली रब, जिन दो ऑब्जेक्ट को हम रब कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर उन्हीं दोनों के बीच में होगा। तो एक से दूसरे में गया मीन्स एक में कम हो गया और एक में एक्सेस में हो गया। तो डू दे अट्रैक्ट ईच अदर? डेफिनेटली, क्योंकि बिकॉज दे कैरी अपोजिट चार्ज, सो दे अट्रैक्ट ईच अदर। नाउ सस्पेंड इट यूजिंग अ थ्रेड, रब अनदर पीवीसी रॉड ऑन वूल एंड ब्रिंग इट क्लोजर टू द सस्पेंडेड रॉड। ये तो आपको क्लियर हो गया है ना, वो वूलन क्लॉथ और पीवीसी रॉड एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यही प्रोसेस एक बार और करिए आप। अब दूसरी पीवीसी रॉड लीजिए, उसे भी वूलन क्लॉथ से रब कर दीजिए। ठीक है, और एक जो पहले वाली रॉड थी उसको आपने हैंग किया हुआ है। ये देखिए आप, दोनों में ए और बी। पहले वाले में क्या हो रहा है, ये आपने रब किया, रब करने का तो उसको हैंग करके यदि आप वो वूलन क्लॉथ उसके पास ला रहे हैं तो ये अट्रैक्ट हो रही है, इस तरफ अट्रैक्ट हो रही है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि अपोजिट चार्ज है। अब आपने दूसरी रॉड को भी किया तो पहली रॉड के पास में दूसरी रॉड को ला रहे हैं, तो बीइंग अ सेम चार्ज कैरिंग कैपेसिटी, दैट्स व्हाई दे रिपेल ईच अदर। ये देखिए इस तरफ मूव करिए, ये इस तरफ मूव कर रही है, मतलब रिपेल हो रही है। ओके, तो ये रिपल्शन हो रहा है। क्लियर है? ऑब्जर्वेशन, द टू पीवीसी रॉड्स रिपेल ईच अदर। ठीक, नेक्स्ट activity with glass rod. Okay, this is glass rod and a cloth of, sorry, ये PVC rod, sorry, this method to test properties of electric charge using glass rod and silk cloth. ये सिल्क और से हुआ था, ग्लास से होता है, एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, व्हेन वी रब PVC rod with woolen cloth, so it acquire negative charge. Okay, by mistake I explained this one ki rod is when PVC rod rub with woolen cloth, so it will carry positive charge. It is totally wrong. Okay, I myself correct my sentence. When woolen cloth and PVC rod rubbed against each other, so PVC rod having negative charge and woolen cloth having positive charge, so they attract each other because they are oppositely charged object. And when we bring close to both PVC rod, why? Because which were carries same charges, so they repel each other. Okay, a PVC rod becomes negatively charged when rubbed on the cloth of wool, while the wool becomes positively charged. So the PVC rod is attracted to the wool because they are oppositely charged. And second activity, two PVC rods of same type of charge repel each other. Okay, and glass rod के साथ में एक्टिविटी है जो मैंने आपको थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गई थी. Okay, next. This activity I already explained na, glass rod with silk piece. Okay, so when we rub the silk glass rod with silk, so glass rod having positive charge and silk having negative charge. Clear? Next, rub the PVC rod with wool and rub the glass rod with silk. Bring these rod closer. अब आप क्या करेंगे, दोनों रॉड को, एक पीवीसी रॉड जिसको आपने वूल से रब किया है और एक ग्लास रॉड जिसको आपने सिल्क से रब किया हुआ है. सो यू नो, जस्ट नाउ वी स्टडीड अबाउट द पीवीसी रॉड when rubbed with wool, so it will carry negative charge and glass rod having positive charge. Okay, so when we bring both the rod to closer, so they attract each other. ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. क्यों? क्योंकि इनके ऊपर तो अपोजिट चार्ज है. सिंपल सी बात है. ओके, सो अल्टीमेटली वी गॉट अ कंसेप्ट दैट लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट. ओके, नेक्स्ट है टेस्टिंग अ चार्ज. अब हम चार्ज को टेस्ट करना है. अ चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट अनदर चार्ज बॉडी विथ अपोजिट चार्ज. पीवीसी रॉड एंड ग्लास रॉड आपने देखा, ये अपोजिट चार्ज के थे, अट्रैक्ट कर रहे थे. ऑल्सो अ चार्ज बॉडी ड्राई कॉम कैन अट्रैक्ट एन अनचार्ज बॉडी पीस ऑफ पेपर. पेपर को तो हमने अनचार्ज ही रखा था, उसे तो चार्ज नहीं किया था. मतलब कंसेप्ट क्या निकल के आ रहा है, दो अपोजिटली चार्ज स्पीशीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट करती है. Clear? Therefore, attraction by a charged body does not indicate whether another body is charged or not. क्योंकि हम नहीं कह सकते, अट्रैक्शन तो अनचार्ज बॉडी का भी हुआ है, तो सिर्फ हम अट्रैक्शन किसी चार्ज बॉडी के थ्रू यदि हो रहा है तो हम ये अल्टीमेटली नहीं कह सकते हैं कि अगली बॉडी भी चार्ज्ड है. ठीक है, वो अनचार्ज भी थी जैसे बिट्स ऑफ पेपर. क्लियर? However, if the body being tested is repelled by a charged body, it is certain that it is charged. बस इतना तो पक्का है कि यदि रिपल्शन हो रहा है किसी चार्ज बॉडी से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का, तो ये तो कंफर्म है कि वो बॉडी भी चार्ज थी. ठीक है, तो अट्रैक्शन अकेले से हम नहीं फाइनलाइज कर सकते हैं कि अगली बॉडी भी चार्ज्ड है या अनचार्ज्ड है.
ठीक है, बिकॉज सिमिलरली चार्ज बॉडीज रिपेल ईच अदर, ये तो कंफर्म है, वो रिपेल कर रही है मतलब वो भी चार्ज होगा, बल्कि ये भी हमको कंफर्म हो जाएगा कि वो बॉडी भी सेम चार्ज कैरी कर रही है। ओके, नेक्स्ट चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अभी हमने जो रबिंग किया था वो क्या था, वहां पर फ्रिक्शन हो रहा था और फ्रिक्शन की वजह से ही तो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा था। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड टुगेदर, फ्रिक्शन इज जनरेटेड बिटवीन देम, they acquire equal and opposite charges. Okay, for example, when a glass rod is rubbed with silk cloth, some negatively charged particles, means electrons, from the glass rod move to the silk cloth. ठीक है, उस पे चले गए। As a result, the silk cloth becomes negatively charged. Okay, becomes negatively charged and glass rod acquires positive charge. The material that gains electrons become negatively charged and the material that loses electron is left with a positive charge. ठीक है, अभी तक अपन यही पढ़ते आ रहे हैं। It is the friction between the rod and the silk cloth result in the transfer of electron. सिर्फ फ्रिक्शन के कारण ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं। आप सोचिए बस ऐसे दोनों को टच कर दें तो नहीं होगा वहां। ठीक है, The list of substances is arranged below in such a manner that any of them will be positively charged with any other substance occurring later in the list. सिंपल सी बात है, ये जो लिस्ट है आपको ये लर्न करना है। इस लिस्ट में जो भी एक ऑब्जेक्ट अपन ले रहे हैं, एक मटेरियल ले रहे हैं, वो उसके बाद आने वाले किसी भी मटेरियल से यदि रब करते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने ग्लास को सिल्क से रब किया था तो ग्लास पे पॉजिटिव आया था और सिल्क पे नेगेटिव आया था, सिंपल। तो जो प्रीवियस पोजीशन कैरी कर रहा है, इट एक्वायर्स ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट रब विद द मटेरियल लिस्टेड लेटर। जो बाद में मटेरियल आ रहा है उसमें नेगेटिव आएगा और जो पहले आ रहा है उसमें, आप यदि सीलिंग वैक्स को रेजिन से रब करोगे तो सीलिंग वैक्स बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड रेजिन एक्वायर नेगेटिव चार्ज। क्लियर? For example, if we rub glass against wool, glass will acquire a positive charge while wool will acquire a negative charge. सिंपल सा, अभी तक अपन यही कर रहे थे। फिर अब चार्ज फ्रिक्शन के थ्रू तो हो रहा है, अब हम और किस मेथड से चार्ज कर सकते हैं? ओके, सो चार्जिंग बाय कंडक्शन एक मेथड ये भी है। फ्रिक्शन से तो चार्ज किया, अब अपन कंडक्शन के थ्रू भी चार्ज कर सकते हैं। हाउ? एन ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज्ड बाय कमिंग इनटू कांटेक्ट विद अ चार्ज बॉडी। किसी एक चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में किसी दूसरी अनचार्ज बॉडी को लाके भी हम चार्ज कर सकते हैं। याद रखेंगे, यहां पर कांटेक्ट की जरूरत है, हमें इसे पास नहीं लाना है, हमें उसे टच भी कराना है। दिस मेथड इज नोन एज चार्जिंग बाय कंडक्शन। इन दिस मेथड द बॉडी बीइंग चार्ज, जिस बॉडी को अपन को चार्ज करना है, एक्वायर्स द सेम चार्ज एज द वन ऑफ द चार्ज्ड बॉडी। सिंपल सी बात है, यदि हम उसे टच कर रहे हैं, ये हमने चार्ज, ये मेटल का एक लिया है, बॉल ली हुई है, मेटल की स्फीयर लिया हुआ है, उस पर हम एक चार्ज बॉडी को लाके उसे टच करा रहे हैं, कांटेक्ट में लाएंगे तो ये रॉड, ये जो बॉल थे मेटल की, वो पहले तो अनचार्ज थी, है ना, अब वो भी चार्ज हो गई है। ये देखिए आप, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई है। तो ये क्यों चार्ज हुई है? क्योंकि इसके थ्रू इस पे कंडक्शन हो गया, चार्ज इसके थ्रू यहां पर आया। तो ये चार्ज बाय कंडक्शन होता है, इसमें कांटेक्ट की जरूरत पड़ती है, उसको कांटेक्ट करना नेसेसरी है। और क्या होता है, इसमें सेम चार्ज कैरी करता है। जिस ऑब्जेक्ट से चार्ज बॉडी टच होती है, सेम चार्ज उस ऑब्जेक्ट में आ जाता है, तो इसे अपन बोलते हैं चार्ज बाय या चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, अब है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक, A neutral object can acquire charge by being closer to the charged object without touching it. इसमें आपको टच नहीं करना है। किसी एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास में, ये देखिए न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, मेटल की बॉल है, हम उसके पास में ला रहे हैं। यहाँ पर आपने टच किया हुआ था, यहाँ आपने टच किया हुआ था, यहाँ सिर्फ आप उसके क्लोज ला रहे हैं, उसके पास ला रहे हैं, तो आप देखेंगे ये भी चार्ज हो गई है, बट इट एक्वायर अपोजिट चार्ज। जिसे आप चार्ज करना चाह रहे हैं, आप यदि उसके पास में रॉड लेके आते हैं चार्ज वाली, तो उस पर चार्ज तो होता है बट वो अपोजिट चार्ज होता है। ठीक है, इसके थ्रू इसमें चार्ज इंड्यूस हुआ है, इंड्यूस हुआ है मतलब उसमें आ गया है,
इसके थ्रू इस पे आया है, बट नॉन कॉन्टेक्ट प्रोसेस है, आप बिल्कुल भी इसे टच नहीं कराएंगे तो इस पे चार्ज तो आएगा। टच कराने पे भी आता है, बस टच कराने पे सेम चार्ज आता है, और जब आप पास में लेके आ रहे हैं तो अपोजिट चार्ज आएगा। क्लियर है? सो कमिंग टू द पॉइंट, दिस मेथड इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। In this method, the body being charged acquire opposite charge as that on the charged body. Charged body के opposite charge आएगा इस पे। Today, wireless phones chargers are available which charges the phones without using any cable. जो कॉर्डलेस या जो वायरलेस फोन होते हैं वो उनको भी अपन चार्ज कर सकते हैं, उनमें केबल की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। तो उनमें जो चार्जिंग होती है वो चार्जिंग बाय इंडक्शन होती है, क्योंकि वहां तो अपन टच नहीं कर रहे हैं। It is based on the phenomena of charging of induction. For example, when a charged glass rod is brought near a metal sphere without touching it. In induction, the body is brought near but never contacted to the object being charged. जिसे हमें चार्ज करना है उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में बिल्कुल भी नहीं लाएंगे। On the other hand, in conduction, charging connection of the charged object to the neutral object is necessary. मतलब इसमें कनेक्शन चाहिए, उसमें कनेक्शन नहीं चाहिए। ओके, नाउ रिवाइज द कंटेंट विच वी डिस्कस्ड just now. Okay, attraction is a sure test of whether the body is charged or uncharged. ट्रू एंड फॉल्स बताना आपको। फॉल्स सिर्फ अट्रैक्शन से हम नहीं बता सकते हैं कि नेक्स्ट बॉडी चार्ज्ड है या अनचार्ज्ड है। ठीक है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ट्रू। अनचार्ज्ड एंड चार्ज्ड बॉडीज आर टच्ड विथ ईच अदर टू चार्ज बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। नहीं, हम उसमें टच नहीं करते हैं, तो वो चार्ज बाय कंडक्शन होता है। ठीक है। बॉडीज एक्वायर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज व्हेन चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन। यस, जब हम फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज करते हैं किसी बॉडी को तो उसमें अपोजिट चार्ज जनरेट होते हैं। द चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग इज स्टैटिक। यस, हम यदि रबिंग के थ्रू चार्ज प्रोड्यूस करते हैं तो वो स्टैटिक चार्ज होता है। ओके।